Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I want to appreciate you all for your efforts, your bravery, your perseverance, and your courage. Um, I feel really very much honored to be amongst you all to share my knowledge that I have about anger management. Okay, so here is a brief synopsis of my presentation. That is, हम पहले जानेंगे कि भी anger है क्या, ठीक है? और what causes anger, why anger is dangerous, and how to manage the anger and anger management technique. And we would be doing some therapies in the end. So. I would like to show you a video to give you a cue about what exactly anger is and how to understand anger, plus how to express it in positive way. But I want to ask a question that what do you mean by anger management and what do you expect from this workshop or presentation? Do you have a mic over there? No mic? Well, it's okay. I think I should continue. So here's the video. Here we go. Yelled about your alarm, and you're the one that's been ruining your life. Sorry, Daddy. I didn't mean to drop it. Did you leave because you were mad at me? No. I just needed a few minutes to count my blessings. So, what did we just saw was a man who got angry because his daughter dropped his phone accidentally, and then instead of yelling, instead of shouting, he just left his home and he went for a walk. He counted to 100 and then he came back home and described the reason to his daughter that why did he left. So it was a cue to give you that how to understand, express anger. So the best way to take start is to proceed systematically. So what anger is? It is a normal and natural feeling. So it's very much natural feeling, right? But it varies in the intensity from mild irritation to a full blown rage. कहते हैं कि गुस्सा करने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक बंदा दहकते हुए कोयले को अपने हाथ में उठाए दूसरे बंदे को मारने के लिए. तो नुकसान किसको हुआ?
वही बंदा जो कि दहकता हुआ कोयला उठा के दूसरे को मार रहा है, नुकसान तो ज़्यादा उसी का हुआ, सामने वाला बंदा तो साइड पे भी हो सकता है। एंड समटाइम्स दोज जो कि सुनते हैं गुस्से वाले बंदे को, दे गेट यूज्ड टू दैट पर्सन, और उस बंदे को क्या कहते हैं, ओह ही इज सच अ हॉट हेड, ही इज हॉट टेम्पर्ड। तो क्या है कि गुस्सा करने से नुकसान उस बंदे का होता है जो गुस्सा करता है, उस बंदे का नहीं होता जो गुस्सा सुनता है। अच्छा जी, तो व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, गुस्सा प्रॉब्लम कब बनता है, गुस्सा डेंजरस कब बनता है, व्हेन इट बिकम्स टू मच फ्रीक्वेंट, टू मच इंटेंस and expressed in hurtful and aggressive way. Let me clear you the difference between anger and aggression. Anger is a feeling, while aggression is acting out your anger, right? So when anger becomes your aggression, when it becomes out of control, and when it lead us toward the destruction, so it becomes a problem, right? और क्या होता है गुस्सा करने से, हम जब गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, इंसान की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, और क्या होता है अक्सर हमारे हाथ में दर्द भी शुरू हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, इसके कुछ साइकोलॉजिकल एंड कुछ फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक, जो कि यहाँ पे स्टेटेड हैं, द डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, heart disease, stomach trouble, headache and low immunity. And evidence was proved by a research that गुस्सा करने से probability of heart attack ज़्यादा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि another evidence was proved that immunity low हो जाती है। So heart attack is something not to be ignored. ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए। So anger is very much डिस्ट्रक्टिव, आई वुड से। लेकिन यहाँ एंगर मैनेजमेंट से मतलब क्या है, एंगर मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है टू सप्रेस योर एंगर और टू इंटरनलाइज इट। इट बेसिकली मीन्स टू एक्सप्रेस इट बट इन कंस्ट्रक्टिव, इन पॉजिटिव, इन अ वेरी बैलेंस्ड वे, राइट। सो व्हाट इट कॉस्ट, गुस्सा करने से क्या नुकसान होते हैं, इट कॉस्ट योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ वर्थ, योर डिग्निटी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान अगर इनको लूज़ कर देगा तो रह ही क्या जाएगा इंसान के पास। रिलेशनशिप से मुझे बहुत अच्छा वाक़या याद आया, और वो ये कि एक बुज़ुर्ग थे और वो अपने साथियों के साथ एक सफ़र पे जा रहे थे। वहाँ देखा दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं और बहुत शाउट कर रहे हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा चीख के बात कर रहे हैं। तो बुजुर्ग ने अपने शागिर्दों से पूछा कि वाई इज़ ही शाउटिंग, अगर वो बंदा उसके सामने खड़ा है तो ये इतना शाउट क्यों कर रहे हैं। किसी ने क्या जवाब दिया, किसी ने कहा था, किसी ने कहा कि शायद इनको गुस्सा बहुत है, अपनी इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग ने कहा नहीं, ये असल में इनके दिल में फासला आ गया है। जब गुस्सा आता है तो इंसान के दिलों में फासला आ जाता है। तो गुस्सा करने से आपके रिलेशंस में फासला आ सकता है, आपके रिलेशंस एक दूसरे से आप दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि गुस्सा ज़्यादातर लोग बच्चों पे निकालते हैं, विच इज़ वेरी मच बैड। इससे बच्चों की सेल्फ इस्टीम हर्ट होती है, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक। तो व्हाट इज़ इट कॉज, ये क्या मतलब किस वजह से गुस्सा होता है। हर बंदे के लिए मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मेरी वजूहात कुछ और होंगी, आपकी वजूहात कुछ और होंगी, मतलब हर बंदे को डिफरेंट रीज़न से गुस्सा आता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप गुस्से को सप्रेस करते रहें, इसको रोकते रहें, राइट, और टेंशन्स जब पाइल अप होती हैं, स्ट्रेस जब पाइल अप होता है, क्या होता है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ हम लीड कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से हम एग्रेशन की तरफ लीड कर जाते हैं। व्हाट इज़ एग्रेशन, एक्टिंग आउट योर एंगर। और जब हम एंगर को एक्ट आउट करते हैं तो कुछ भी कॉस्ट हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस। क्या होता है गुस्से की वजह से, या तो हम कभी इंटरनलाइज कर देते हैं इसको, यानी कि अपने ऊपर, ठीक है, या फिर हम पैसिव एग्रेसिव बन जाते हैं। पैसिव एग्रेसिव वो लोग होते हैं जो कि इनडायरेक्टली दूसरे लोग को टॉन्ट कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों को गुस्से का निशाना बना रहे होते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच बैड। So his question, why does some people get more angry while others do not get angry that easily? There can be different reasons. One of the reason is psychological point of view. जिन लोगों का tolerance level low होता है frustration के लिए, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, genetic भी है, ठीक। Some children are born too much touchy and they get easily angered. और यह है सोशल कल्चर फैक्टर। हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमें बताता है कि डर शो करें,
कोई भी इमोशन शो करें, लेकिन गुस्सा ना शो करें, ठीक? गुस्सा बुरा है, गुस्सा बैड है, आप गुस्से को मत शो करें। दूसरा ये है कि पुअर इमोशनल कम्युनिकेशन सिखाई जाती है हमें। अब हमारी सोसाइटी ऐसे जहाँ पे कहा जाता है कि जो मर्द हैं उनको रोना नहीं चाहिए, ठीक? अब वो रोएंगे नहीं तो मतलब हाउ विल दे एक्सप्रेस देयर इमोशन, हाउ विल दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग आर सम ऑफ द रीजंस दैट कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। सो हियर द गोल ऑफ दिस presentation is to make you understand what your anger is, ठीक? And how to express your anger in positive, in best possible way. So here is a point I want to make it clear that आप लोगों को नहीं चेंज कर सकते. You cannot change the people around you, nor can you get rid of the people around you or the situation that enraged you. What you have to do is to change yourself. क्या हम आसपास लोगों को चेंज कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को या सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप जो है वो है टू चेंज योरसेल्फ, राइट? वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक, वी हैव टू चेंज द वे वी रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग. सो हियर इज एन अदर वीडियो आई वुड लाइक टू शो उसमें यह है कि भाई what other emotions are accompanied by anger and what are the consequences of that. Hello, my name is Susan Aaron, and I've been working in the field of emotions for over 20 years, and I want to share some of that knowledge with you here today. Now let us examine the first problem associated with anger, and that is anger being associated with violence. We're going to do this in the form of a skit, and this skit has the following 4 characters. I'm angry and I want to express it somehow. On violence. I want to do harm, I want to do damage, I want to hurt somebody. I'm suppression. I don't ever want to express my anger. I wouldn't possibly take the risk of hurting someone. In fact, I believe you should bury it deep inside. And I'm not angry. I'm fine. Why would anyone think I'm angry? I'm self-care, and I'll do what I need to do to take care of myself. Notice that anger is the only emotion present. The other characters are behaviors. Anger is always expressed with one of these behaviors. Let's see how anger looks when it is hooked up with each of these behaviors. First, we will look at anger when it's expressed with the behavior violence. I want to encourage you all to breathe during this because this can be very triggering. What I mean by that is it could remind you of past experiences of unhealthy anger. I'm angry and I want to express it somehow. So you're angry. Yeah, I am. Let's go punch that son of a bitch in the face. Let's go kick down the door or smash the window. Okay. Did you notice how violence draws the power of the angry energy and directs it towards violent behavior? Now let's see anger when it's combined with the behavior suppression. This is often what people will choose if they've had unpleasant encounters with violence. But ask yourself, is this really a better choice? I'm angry and I won't let you be angry. You might hurt someone. I think it's better to keep it buried deep inside. We're not angry. We're fine. We're just fine. In fact, we're happy. Aren't we happy? We're just fine. Hopefully you can see that suppression is not a healthy option. Now let's see anger when it's combined with the behavior self-care. I'm angry and I want to express it somehow. You're angry? Yeah, Want I to am. get that out? Yeah. Would you like to play some tennis? Want to try some tennis? Hit the balls? No, last time I'd done that, I just broke the tennis racket. It's not good for me. Okay, what about some journaling? Would you like to journal? No, because I'm so mad now, I just probably ripped the pages abroad, eh? Like, just too much energy there right now. What about speaking to the person? No, if I do that, I'd probably do them more harm because, like, I'd be real nasty and they don't deserve that. Okay. Would you like to get the anger out on a tackle dummy? Yeah, Or that'd be try good that? idea. Yeah. Okay, 1 second.
What I'd like you to do is keep your feet on the ground, make fists, keep your eyes open. Imagine, Tom, that somebody's behind you that you're angry with. You're not going to hurt them. This is not violence. This is about putting your anger on here, not on them. Okay, so when you're ready, you go ahead. Oh, you're not going to do that to me. No, I've had enough of that thing. Let's shut it. Whew. Take a breath. How do you feel? Feel pretty good, actually. Feel the energy left it. Probably could go speak to them now without doing them any harm, clear of the issue. I feel pretty good. Great. So you see, when the anger is accompanied by self-care, it is more positive and good way to express your anger, right? So before moving toward the strategies, keep this point in your mind, that we have to understand the anger and to express it in more positive and constructive way. But how to express anger in positive way? Do you have any idea? I guess Mike is not there. Okay, moving toward the anger management strategies. The first one is Islamic perspective. As Islam is the complete code of life, so being a Muslim, हम ये देखेंगे भाई इस्लाम क्या कहता है गुस्से के बारे में. इस्लाम कहता है गुस्सा हराम है. क्यों हराम है? क्योंकि ये हमारे सेंसेस पे गालिब हो जाता है, हावी हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है, हमारे सेंसेस मफलूज हो जाते हैं. रिजल्ट में ये होता है कि हमें पता नहीं चलता हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. ठीक, इस पे एक रिसर्च हुई थी और वो ये था कि इन्होंने ये चेक किया कि जब इंसान अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, नशे की हालत में होता है, तब उसके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, और जब वो गुस्से की पीक की हालत में होता है तब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. तो इसी वजह से क्या है, गुस्सा हराम है, हमारे सेंसेस पे हावी हो जाता है, गालिब हो जाता है, और हमें क्या होता है कुछ भी समझ में नहीं आता. सो कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप सबसे पहले रिसाइट करो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ठीक, और एंड फॉर माय नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, यू कैन रिसाइट एनीथिंग, लाइक यू कैन रिसाइट और रिपीट अ कामिंग वर्ड, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, इट्स ओके. ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि वो सारा कुछ कंडेंस हो जाता है, हम वो पानी पीते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, वी फील समहाउ बेटर. एंड अदर पॉइंट इज चेंज द प्लेस, आप जिस जगह पे हैं उस जगह से मूव कर जाएं. ठीक, दूसरा ये, अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो खड़े लेट जाएं, लेटे हुए हैं तो खड़े हो जाएं. आते हैं इमोशनल फ्रीडम थेरेपी की तरफ. आई वुड लाइक यू ऑल टू काइंडली अप्लाई दिस थेरेपी अपॉन यू. आर यू विलिंग? Okay, so emotional freedom therapy is a tapping therapy. In this therapy, we tap certain energy points, meridian points, and we let our emotions go away. ठीक, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि काइंडली बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं आप सब. ठीक, अब आप क्या करें कि आप विजुअलाइज करें उस बंदे को जिस पे आपको गुस्सा आया है, या सिचुएशन या कुछ भी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया. ठीक, आपकी इमोशंस जो है तो वो नेगेटिव साइड पे गए, आप विजुअलाइज करें उस बंदे को. हो गया? ओके, सो रिलैक्स योरसेल्व्स, टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. Inhale through your nose, hold your breath and exhale it through your mouth. Right? अब मैं एक स्क्रिप्ट बोलूँगी और उस स्क्रिप्ट को आप लोगों ने रिवाइज करना है अपने साथ. ठीक, लेकिन you have to feel the words, you have to focus and concentrate upon the words I am saying. Right? The first point is this one, karate chop. You have to tap this, then this one, forehead, side of the eyebrow, side of the eye, under the nose, chin, and below the collarbone. Right? So let's take a start. उस बंदे को विजुअलाइज करें, सिचुएशन को जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया. Okay, even though
karate chop. Even though I feel very much angry right now, but I deeply and completely accept myself and love myself. I honor myself and my feelings. I let myself to feel this anger. Even though I am very much angry, I can scream right now, but I choose to stay calm. I am so angry. I feel this frustration. I know it's hurting me. I feel it in my heart. I feel it in my whole body. I let myself to feel this anger. It doesn't mean I will feel this way forever. It's okay to feel angry. The situation is not okay with me. I choose to feel calmer about it. I am willing to start letting go this anger away. I am willing to feel calmer and peaceful. I am willing to release this energy. I am feeling very much light. It's good to feel calm. I feel very much lighter. So how did you feel? Very good. So, thank you. By repeating this cycle again and again, I hope इस वक्त शायद आपको ज़्यादा कुछ difference feel ना हुआ हो because you are in this environment. अगर आप अकेले में बैठें, इस स्क्रिप्ट को आप खुद भी बना सकते हैं. अगर आपको गुस्सा आया है, स्ट्रेस है, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन यू आर होल्डिंग ऑन, उसके लिए आप अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाएं और इसी तरह इन पॉइंट्स को टैप करके उस स्क्रिप्ट को आपने क्या करना है, रिपीट करना है. ट्रिक इसमें यह है कि पहले इमोशन को इंटेंसिफाई करना है. अगर आप गुस्से में हैं तो पहले इंटेंसिफाई, आई एम वेरी मच एंग्री, आई एम सो एंग्री. आहिस्ता आहिस्ता आप लाइटनेस की तरफ आएँ, उसको लाइट करें, कम करें. राइट. सो दिस वाज वन काइंड ऑफ थेरेपी टू गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस. Another point is find the root cause of anger. We have hard time solving our anger if we do not know what is the underlying reason of our anger. अगर हमें अंडरलाइन रीज़न का नहीं पता तो हमें बहुत मुश्किल होती है उस एंगर को हल करने में. जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनका आपस में डिस्प्यूट आ गया है, किसी बात पे लड़ाई हो गई है. अब क्या होता है कि वाइफ लाउंज में जाती हैं, बच्चों ने थोड़ा सा मेस बनाया हुआ है, बच्चों को बहुत बुरी तरह डांट दिया, किचन में गई मुलाजमा को डांट दिया. ठीक है. हस्बैंड हैं, वो जाते हैं, भाई ड्राइवर को डांट दिया, सबऑर्डिनेट्स को डांट दिया. ये क्या हो रहा है? दे आर डिस्प्लेसिंग देयर एंगर, लेकिन एक्चुअली दे आर डैमेजिंग देयर पर्सनैलिटीज, दे आर डैमेजिंग देयर सेल्व्स. राइट. सो अब आप मुझे बताएं, क्या रूट कॉज इस एंगर का ये था कि बच्चों ने मेस बनाया? नो. मुलाजमा ने काम सही नहीं किया? नो. ड्राइवर ने कुछ गाड़ी साफ नहीं की? नो. द एक्चुअल रूट कॉज इज द डिस्प्यूट विद वाइफ. ठीक. वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई. तो वट एवर द रीज़न इज, जो भी वजह है आपके एंगर की, आप पहले उस वजह को निकालें. ठीक. आप फाइंड करें द रूट कॉज बिहाइंड योर एंगर. ठीक. और फिर आप उसको, आपने क्या करना है, आपने उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं कि अब क्या हल हो सकता है, क्योंकि गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा. इट विल मेक द सिचुएशन मोर वर्स. ठीक. सो अनदर very much good, very much effective technique is the relaxation technique. So मैं चाहती हूँ कि आप you all follow my directions. ठीक.
अगेन आप बिल्कुल बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ठीक। ये है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। यू हैव टू इनहेल फॉर 4 seconds slowly like this. Hold your breath. Exhale it through your mouth. Slowly and gradually, right? Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Imagine you are inhaling calm blue air. आप imagine करें कि आप हल्की नीली रंग की रोशनी को inhale कर रहे हैं. Visualize. Hold your breath. Now release your breath through your mouth. Imagine you are exhaling red toxic air. Imagine करें आप red कलर की toxic air को बाहर exhale कर रहे हैं. क्या आप लोग कर रहे हैं? Inhale, hold and exhale. This is called controlled breathing. It is very much effective for anger. वो लोग जिनको बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता एंगर को, तो they can try the tapping therapy as well. They can try this controlled breathing therapy as well. ठीक. And other is progressive relaxation technique. तो बहुत इफ़ेक्टिव है ये भी. मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको अप्लाई करें. आर यू विलिंग? वेरी गुड. ओके, आप अगेन बहुत कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, रिलैक्स होके अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बहुत रिलैक्स छोड़ दें. नाउ टेक अ नाइस डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सहेल. इसी तरह डीप ब्रीथिंग करते रहें. आप इमेजिन करें आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल. नाउ कंसंट्रेट अपॉन द मसल्स ऑफ योर स्कैल्प. कंसंट्रेट करें इन पे. कंट्रैक्ट द मसल्स ऑफ योर स्कैल्प. Gradually relax the muscles of your scalp. Now concentrate upon the muscles of your forehead, eyebrows. Contract the muscles of your eyebrows. Now relax the muscles of your eyebrows. Feel the relaxation. Feel a different kind or state of relaxation. Now contract the muscles of your cheeks and jaws. Now gradually relax the muscles of your jaws and cheeks. Feel the relaxation. Now contract the muscles of your arms, fists. Contract करें इनको. Gradually relax the muscles of your fists and arms. Feel the relaxation, the deeper state of relaxation. Now contract the muscles of your shoulders. Relax the muscles of your shoulders. Feel the relaxation. Feel the release of energy. Contract the muscles of your back. Relax your muscles. Feel the relaxation. Now contract the muscles of your chest. Relax your muscles. Contract the muscles of your abdominal region. Relax the muscles. Feel the relaxation. Now contract the muscles of your thighs. Relax your muscles and feel the relaxation. Contract the muscles of your legs as much as you can. Now relax the muscles of your leg and feel the relaxation. Contract the muscles of your feet. Now relax the muscles of your feet. Imagine the negative emotions are going away. You are very much relaxed and very much lighter. So how was it?
Some other techniques are the non-strenuous exercise like yoga, meditation, shower, walk, deep breathing और book reading. बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है जो कि आपको इंगेज रखती है. ये एक्चुअली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको इंगेज रखती हैं और आपको उस तरफ सोचने नहीं देती. ठीक, थोड़ा सा मेडिटेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगी. मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है. काइंडली 20 मिनट्स रोज़ किया करें. आई होप यू कैन टेक 20 मिनट्स फॉर यू. सो मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको रिक्लाइनिंग पोजीशन में बैठ जाना होता है. इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इन द रिक्लाइनिंग पोजीशन, इन ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, गुस्से के लिए साउंड मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है जिसमें आपको एक मुसलसल मुतवातिर साउंड पे, आवाज़ पे कंसंट्रेट करना होता है. ख़ुद को यूनी फोकस करना होता है. रैंडम थॉट्स नहीं आने चाहिए आपकी माइंड में. ठीक, और क्या करना होता है, रिक्लाइन पोजीशन में बैठ कर कंसंट्रेट अपॉन द हार्ट, द रिदम ऑफ योर हार्ट एंड अपॉन अ साउंड. आप डाउनलोड कर सकते हैं साउंड गूगल से या कहीं से भी. सो उस साउंड पे आपने कंटिन्यूसली क्या करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है. और ब्रीदिंग पैटर्न को भी आपने साथ में मेंटेन रखना होता है. फर्स्ट 10 ब्रेथ्स आपने क्या करनी होती है, 4 सेकेंड्स तक इनहेल किया तो 4 सेकेंड्स तक एक्सहेल किया. देन आफ्टर 10 ब्रेथ्स 3 सेकेंड्स, सो 3 सेकेंड्स तक इनहेल किया, 3 सेकेंड्स तक एक्सहेल किया, देन 2 एंड देन 1. फिर आपकी रैपिंग थेरेपी जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो करते रहते हैं. इट्स वेरी मच हेल्दी. टेक अ टाइम आउट एज वी सॉ इन द वीडियो. वो जो फर्स्ट वीडियो हमने देखी जिसमें दैट मैन वेंट आउट ऑफ हिज होम, ही वेंट फॉर अ वॉक. तो टेक अ टाइम आउट, बाहर निकल जाए, लीव दैट डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, गो फॉर अ वॉक एंड डाइवर्ट योर अटेंशन. थॉट स्टॉपिंग टेक्निक इज़ कि आपको फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. ठीक, आपने क्या करना है, उस वक्त आप गुस्सा शो नहीं करना चाहते क्योंकि अगर आप शो करेंगे हो सकता है सामने कोई बैठा हुआ आप उस पर एक्सप्रेस कर दें या डिस्प्लेस कर दें. तो यू हैव टू कॉल योर सेल्फ स्टॉप. आपने कहना है खुद को कि स्टॉप, मैंने ये सोच अभी नहीं सोचनी, मैंने ये सोच बाद में सोचनी है. ऐसा नहीं करना कि आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है या सप्रेस कर देना है. एक ख़ास टाइम रखें कि मैंने 1 से 6 बजे से 7 बजे तक वो तमाम थॉट्स सोचनी है जिनको मैंने स्टॉप कॉल की हुई है. सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड टेक्निक. एंड अदर टेक्निक इज़ द रबर बैंड टेक्निक. वो हज़रात और ख़वातीन जिनको बहुत गुस्सा आता है, यू कैन वेयर अ रबर बैंड. ठीक, आपको जब भी गुस्सा आता है और you feel like you will yell or shout upon someone, just snap that rubber band or tighten it. इससे होता क्या है, एक तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, दूसरा आपको याद आता है कि नो, आई डू नॉट हैव टू शो दिस बिहेवियर, दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आई हैव टू अडॉप्ट पॉजिटिव एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. राइट, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव टेक्निक कि आप खुद को याद दिलाते हैं मैंने गुस्सा इस तरह से नहीं शो करना, मैंने गुस्सा इस तरह से शो करना है. And other is cognitive restructuring. It is the changing the way you think about anything. जैसे कि अब तक अगर आप लोग ये सोचते आए थे कि गुस्से को उसी वक्त निकाल देना चाहिए, so change this way. ठीक, so angry people क्या होता है कि they have sometimes irrational beliefs or they curse, they swear and they speak in highly colorful terms. But this strategy will help you to restructure, reframe your thoughts and replace those irrational or inappropriate behavior with the appropriate behavior. क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें you question yourself. First question is, who is suffering? गुस्सा जो कर रहा है वो सफ़र हो रहा है, जाहिर सी बात है. ठीक, and other question, for how long will you hold your anger or your stress? जैसे कि सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी ग्लास ऑफ वाटर की, कि आप अगर इसको बहुत टाइम तक होल्ड रखेंगे तो क्या होगा, तकलीफ आपको ही होगी. सो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू होल्ड ऑन योर एंगर, या आपने एंग्री फीलिंग्स को शो करना है. ठीक, आस्क योरसेल्फ that is my anger appropriate to this situation? Am I jumping to conclusion? Are my expectation of the other people appropriate? दूसरी बात कि am I over generalizing, या फिर मैं
गुस्से में क्या होता है कि आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक इंसान कम्प्लीटली बुरा है या कम्प्लीटली अच्छा है। अच्छाई और बुराई का एक मिक्सचर होता है, अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। तो गुस्से में ये होता है कि वी ड्वेल अपॉन द नेगेटिव फैक्टर्स, द नेगेटिव बिहेवियर्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक, तो इससे क्या है कि आपने क्वेश्चन करना है खुद से, नहीं मैंने इस तरीके से नहीं सोचना, मैंने इस तरीके से सोचना है। एक बहुत बेसिक चीज़ जो है, द सिंपल वे टू अवॉइड एंगर इज़ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग। हमारी एक्सपेक्टेशंस गिव राइज टू अवर एंगर। एक्सपेक्टेशन से हमारा एंगर बढ़ता है। आप सिर्फ एक दिन के लिए कीजिएगा और देन सी द वंडर्स। कल का दिन है, कल के दिन जैसे ही सुबह आप उठें, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ठीक, और फिर अपने आप से ये कहें कि आज के दिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना पूरा दिन तक। और फिर आप पूरे दिन देखें आपका पूरा दिन कितना लाइट और कितना अच्छा गुजरता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, आप खुद को अलग फील करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे भाई इस बंदे ने ये करना है, इस बंदे ने ये करना है। आपको आपके माइंड में होता है कि ये सारा काम मैंने खुद करना है, आई डोंट हैव टू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एनीवन। सो एक्सपेक्टेशन ब्रीड फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ब्रीड्स एंगर, and then anger breeds aggression. So expectations and assumptions हम खुद से मफरूज़े बनाना शुरू कर देते हैं। अब लड़ाई हो गई तो हम बात करना तो जाहिर सी बात है छोड़ ही देते हैं, और फिर क्या करते हैं हम assumptions बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो इसने सॉरी नहीं किया, ये मेरे पास आए नहीं, या कुछ भी। तो क्या होता है कि एक्चुअली वो बंदा दूसरे एंगल पे होता है और हम दूसरे एंगल से सोच रहे होते हैं। सो डिस्कस किया करें। जब भी फॉर एग्जांपल आप लोग के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया है, कोई भी बात है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया, डिस्कस इट विद योर सेल्फ एंड देन विद द अदर पर्सन। ठीक, आप पहले खुद को बिल्कुल काम करें, अल्टरनेटिव सोचें कि इस बात के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद आप जाके उस बंदे से डिस्कस करें डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग। So look for the alternative ways of thinking about people or situation that sets you off. When you begin to evaluate the situations more closely, you might see that there are other ways to think about them. मेरी अपनी एग्जांपल, हमारे वर्किंग आवर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान घर ज़्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेशन होती है, इरिटेटेड होता है। तो मैं जैसे ही जाती हूँ तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है ईमान चाय तो बना दो। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले और मैं थोड़ा सा शाउट करती थी। मुझे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कि मैं भी इतनी थकी हुई हूँ, शी इज़ आस्किंग मी टू मेक टी फॉर हर। मैंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया कि उनकी आदत है, वो कहती हैं, मैं जब भी घर जाती हूँ उनकी आदत है वो कहती हैं, ठीक। और मैंने एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दी कि आई डोंट हैव टू एक्सपेक्ट कि भाई या फिर वो घर में होती हैं कुछ भी। सो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करें एंड चेंज द वे यू थिंक अबाउट समथिंग और एनीथिंग, ठीक। इससे क्या होता है कि बंदा थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। एम्पैथी लेसन योर एंगर, पुट योर सेल्फ इन द अदर्स शू। जब हम दूसरे बंदे की फीलिंग्स को फील करते हैं तो वी बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, ठीक। उससे क्या होता है हम थोड़ा समझने लग जाते हैं। जैसे पीछे ये एग्जाम्पल भी है कि भाई माई बॉस नेवर शोज अप्रिसिएशन माइट बिकम ही प्रोबेबली हैज़ अ लॉट ऑन हिज माइंड राइट नाउ। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई या कोई भी कि मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट करें बात बात पे, ठीक, तो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉस के और भी बहुत से काम होते हैं, और भी बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, और भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सो वाई शुड आई थिंक लाइक दैट कि ही वुड ऑलवेज अप्रिशिएट मी। सो चेंज द वे, सिंपली रीफ्रेम योर थॉट्स। अपनी सोच का जो फ्रेम है उसको बदलें, जो मोल्ड है उसको बदलें, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाएं। सो लॉजिक डिफीट द एंगर, लॉजिकली एंड रेशनली सिचुएशंस को देखें, ठीक। रिमाइंड योरसेल्फ दैट गेटिंग एंग्री विल मेक सिचुएशन वर्स एंड विल कॉस्ट यू अ लॉट। ऐसा ही होता है कि भाई गुस्सा करने से कुछ होता है, शायद सब सो रहे हैं। गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, हमारा अपना नुकसान होता है, और बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस टेक्निक, एंग्री पीपल नीड टू बिकम अवेयर ऑफ देयर डिमांडिंग नेचर एज वेल एंड ट्रांसलेट देयर एक्सपेक्टेशंस इनटू डिजायर। पे अटेंशन, आर यू? Who taught you to pay attention?
No, I didn't taught. You yourself taught it to you that जब आता है attention, alert, pay attention, तो आप क्या करते हैं? Attention pay करते हैं. ये आपने अपने माइंड को खुद सिखाया है, अपने सीखा है. इसी तरह आप अपने माइंड को ये भी सिखा सकते हैं कि we do not have to react immediately to anything. हमें जब गुस्सा आता है तो हमें उसी वक्त रिएक्ट नहीं करना, ठीक? एंड यू कैन टीच योर माइंड दैट यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर एंगर एज वेल. हम अक्सर ये सोचते हैं कि गुस्सा तो कंट्रोल नहीं होता, नहीं कंट्रोल कर सकते. येस, वी कैन कंट्रोल इट, राइट? सो इट वाज अ लिटिल टेक्निक. असर्टिव टेक्निक, बी असर्टिव, जैसे कि सर ने कहा, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, इट इज एक्चुअली असर्टिवनेस, द एबिलिटी टू से नो, to empower yourself and to convey your feelings in a positive way, in a respectable manner, communicating your anger in an assertive way, not aggressive way, which means that communicate your anger in a respectable and non-confrontational way. आप नॉन डायरेक्टिव स्टैंस यूज़ करते हुए अपने एंगर को एक्सप्रेस करें. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम क्लास में देखते हैं कोई स्टूडेंट है, अच्छा बिहेवियर नहीं शो कर रहा, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है, आप सही नहीं कर रहे, बल्कि हम नॉन डायरेक्टिव स्टैंस अपनाते हुए कहते हैं कि भाई सेल फोन नहीं यूज़ करना क्लास में, सेल फोन यूज़ करना बहुत बुरी आदत है. सो assertive technique is to empower yourself and to communicate your aggression in a respectful way. Your goal should be to get another person understand the reason for your anger without blaming or being demanding or hostile. Use the I statement. जैसे कि हस्बैंड घर लेट आ गए हैं तो बीवी कहें आप कभी भी लेट नहीं आते, आप ऐसे, आप ऐसे, आप हमेशा ये करते हैं. सो डू नॉट यूज द नेवर एंड ऑलवेज वर्ड्स. यूज द आई स्टेटमेंट्स दैट यू डिडंट इन्फॉर्म मी अबाउट कमिंग लेट, आई वाज अपसेट. तो पहले यू की बजाय आई बोली, आई एम अपसेट बिकॉज यू डिडंट इन्फॉर्म मी अबाउट दैट यू विल अराइव लेट. सो आई स्टेटमेंट यूज करें टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स, ठीक? प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी प्रॉब्लम को बीच में रखें और उसके अल्टरनेटिव्स सोचें कि क्या बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक? फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऑफिसर ने आपको डांट दिया, आपको बहुत सा गुस्सा आ गया है, तो आप क्या करते हैं? पहले तो काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि गुस्से में जाहिर सी बात आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसा बिहेवियर मैंने शो करना है. काम योर सेल्फ डाउन एंड देन थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव्स. हो सकता है बॉस डिस्टर्ब हो सकता है मैंने गलती की हो. So should I talk to him or no? Should I ignore this? So alternative सोचें. जो भी गुस्सा है, जिस पे भी गुस्सा है, जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन को बीच में रखें और उसके आंसर्स को सोचें, सॉल्यूशंस सोचें. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते तो हम और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं. तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सो आपने किस चीज़ पे फोकस करना है? Focus on how to handle your anger, how to manage your feeling, right? और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज करें, लाइक अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, सेल्फ सफिशेंट बने. जब आप सेल्फ सफिशेंट बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, तो बाहर से आने वाला स्टिमुलाई आपको इतनी आसानी से नहीं हिला सकता. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक. सेल्फ इंस्पेक्शन किया करें, पूछा करें खुद से, सेल्फ टॉक किया करें. सेल्फ टॉक हर बंदा करता है, या तो सोचते हुए या फील करते हुए या वर्बली, लेकिन जो वर्बली करते हैं तो लोग कहते हैं ये पागल हैं. तो सेल्फ इंस्पेक्शन करें, खुद से पूछें कि वाई आर यू एंग्री, आर यू होल्डिंग ऑन टू एनी ओल्ड एंगर और यू आर जस्ट बिल्डिंग अप योर एंगर, पाइलिंग अप द स्ट्रेस, ठीक है? एंड हाउ दीज फीलिंग्स आर रिलीज्ड. बी अवेयर दैट हाउ यू एक्सप्रेस योर एंगर. नाउ इन टेक्निक्स के बाद आप सब इस तरीके को चेंज करें, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते थे उस तरीके को चेंज करें. अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आप उस गुस्से को निकालना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द टैकोडर्मी एज वेल. जैसे कि इधर उस वीडियो में दिखाया गया कि भाई आप उस डमी को पंच करें, पंचिंग बैग को हिट करें. लेकिन ये एक ज़रूरी बात है याद रखने के लिए कि पंचिंग बैग को हिट करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि आई एम हिटिंग दैट पर्सन. You have to think that that person is behind that dummy, ठीक है, behind that punching bag, and you are punching just the punching bag and releasing your anger, ठीक.
Unexpressed and unresolved anger create passive aggression, and aggression or the aggression turns inward, which is far more disastrous. क्या होता है कि जब हम एंगर को रिजॉल्व नहीं करते, मतलब मसले को रिजॉल्व नहीं करते, हल नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करते, तो या तो उस एंगर को हम इंटरनलाइज कर देते हैं, या हम क्या करते हैं कि पैसिव एग्रेसिव बन जाते हैं, हर बंदे को टॉन्ट करते हैं, सिनिकल पर्सनैलिटी बन जाती है हमारी. सो विच इज़ वेरी मच बैड. सेल्फ इन्फोर्समेंट ये होता है कि भाई रिवॉर्ड एंड पनिश योर सेल्फ. रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर पॉजिटिव बिहेवियर. आप कुछ भी अच्छा करते हैं, अप्रिशिएट योर सेल्फ. अप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड. सो रिवॉर्ड योर सेल्फ. और अगर आपने कोई ऐसा बिहेवियर शो किया जो कि इनअप्रोप्रिएट था, जो आपको नहीं शो करना चाहिए था, तो पनिश योर सेल्फ. अब पनिश के लिए ये नहीं कि खुद को मारना है, पनिश के लिए ये है कि अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो आप उसमें से 1 घंटा माइनस कर दें, ठीक, या आधा घंटा माइनस कर दें, या एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, ठीक. सो लव योर सेल्फ एंड एवरीवन इज स्पेशल एंड यूनिक. इस बात को माइंड में रखें कि एवरीबडी इज़ स्पेशल एंड यूनिक. साइकोलॉजी कहती है कि हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है. So you all are different from another. We all are different and everyone is special and unique. हर बंदे में सलाहियतें होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं. यहाँ पे अगली स्लाइड है. मैंने एक बुक में पढ़ा था और वहाँ ये लिखा था कि इंसान में हिडन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, छुपी सलाहियतें होती हैं, हमें पता नहीं होता. तो उन छुपी सलाहियतों को निकालने का बेस्ट तरीका यह है कि इंडल्ज योरसेल्फ इन डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटीज़. आप आर्ट करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, स्केचिंग करें, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, रेस्लिंग करें या कुछ भी. सो पॉजिटिव एक्टिविटीज़. तो जब हम कुछ नया करते हैं, लाइक डिबेट लिखना या कुछ भी स्किट्स लिखना, स्क्रिप्ट्स लिखना, सॉन्ग्स वगैरह लिखना, तो जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस टू. सो डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स. इससे क्या होगा, जब आपका अंदर मजबूत होगा, जब आपकी सेल्फ मजबूत होगी, तो बाहर का कोई भी स्टिमुलाई आपको इतनी आसानी से नहीं हिला सकता. ठीक, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, आप इतनी आसानी से स्ट्रेस भी नहीं ले सकते, डिप्रेशन भी नहीं ले सकते. सो काइंडली डिस्कवर योर कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स. अर्ज कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर. इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दैम इमीडिएटली, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स इमीडिएटली. आप बैठें, स्टॉप एंड इवेलुएट द सिचुएशन लॉजिकली, ठीक, एंड थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव्स. अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है काम डाउन होने में, तो जो ये टेक्निक्स थी AFT या रिलैक्सेशन, रनिंग, वॉक, मेडिटेशन या बाहर निकल जाना, सिचुएशन को छोड़ देना, वो टेक्निक्स अपनाएं, या पंचिंग बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद व्हेन यू फील दैट यू आर नाउ काम डाउन, नाउ यू आर रिलैक्स, तो फिर आप सोचें उसके हल के लिए कि क्या हल हो सकता है. वो जो रबर बैंड टेक्निक थी, दैट इज़ बेसिकली द सेल्फ कंट्रोल एंड अर्ज कंट्रोल टेक्निक. Punching bag, hitting punching bag is a positive way to release your energy. It aids in relieving the angry feelings, and after calming down, you would be able to think rationally. So एक और बात मुझे याद आई, वो ये कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. उनके फादर ने उनसे कहा कि बेटा, आपको जब भी गुस्सा आता है आप एक कील लें और वो सामने एक दरख्त है उसमें आप ठोंक दिया करें कील. उस बच्चे ने ऐसा ही किया. 40 दिन गुजरे. फादर ने पूछा, बेटा अब क्या सूरत हाल है? तो बेटे ने कहा, थोड़ी सी कमी आई है एंगर में. तो फादर ने कहा, ठीक है, अब आपको जब गुस्सा आता है तो आप उस कील को निकालें, ठीक. आफ्टर सम डेज फादर अगेन आस्क्ड हिज सन दैट अब क्या सूरत हाल है. तो फादर ने कहा, सन ने कहा कि अब मेरा एंगर एक हद तक कम हो चुका है, क्योंकि वो इतना एक स्ट्रेनियस टास्क है, इतना मुश्किल टास्क है कि मेरी एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है, मैं थक भी जाती हूँ, मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो जाता है. फिर फादर ने उनको वो दरख्त दिखाया कि बेटे ये दरख्त देखिए, इसमें कितने सुराख हो चुके हैं. अगर आप इस एंगर को किसी दूसरे पे उतारते इन हर्टफुल वेज, या आप इस गुस्से को अपने ऊपर इंटरनलाइज कर देते या अपने ऊपर उतारते, तो आपकी भी हालत इस ही दरख्त की तरह हो जाती जिसमें इतने सुराख बन चुके हैं. सो कम्युनिकेट योर एंगर, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. फ्री फ्लो राइटिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है. फ्री फ्लो राइटिंग ये होती है विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट. आप लिखते रहें जो आपके माइंड में आ रहा है.
ठीक है, फ्री फ्लो राइटिंग। और सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, सेल्फ डिवीटिंग बिहेवियर मत अपनाएं कि भाई आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता या कुछ भी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड कम्युनिकेटिंग योर एंगर लाइक टॉकिंग टू समवन यू लव और द क्लोज्ड वन, और टॉक टू योर सेल्फ सिंपली, ठीक। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे। यूज़ ऑफ ह्यूमर, मजाक का इस्तेमाल, जैसे कि आई होप सो करते भी होंगे, फ्रेंड्स आपस में होते हैं तो मजाक वगैरह चलता रहता है। होल्डिंग, इट इज़ द कोट ऑफ बुद्धा, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। सो एंगर इज़ वेरी मच डेंजरस। नाउ I think we should move toward the question answer session. Assalamu alaikum sir, my name is Navi. My one question is with Dr. Zishan Khattak and one is with ma'am. Sir, how we could manage our stress in our working environment? And my question with ma'am is that how we could manage our anger in our working environment. Okay. जी, सवाल आपने पूछा कि हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए, इस तरह है कि जनरली आपको बात बताता हूँ कि देयर इज अल्फाबेट बी एंड देयर इज एन अल्फाबेट डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थडे एंड डी स्टैंड्स फॉर डेथ। और ये जो बी और डी है, इसके बीच में एक आता है सी, जिसको हम कहते हैं चॉइस। अपनी चॉइसेस को ऐसा रखें कि जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी प्रायोरिटी हों, आप उनको परफॉर्म करें। होता यह है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है सेकेंडरी कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बिल्टअप होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में किस चीज़ की वजह से आ रही है। वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दी सुपरवाइजर एंड दी सबऑर्डिनेट, या आपके ताल्लुकात आपके बॉस के साथ सही नहीं है, आपकी कमांडर के साथ सही नहीं है। क्या वो स्ट्रेस आपके कलीग की तरफ से आ रहा है? क्या वो स्ट्रेस आपके किसी जूनियर की तरफ से आ रहा है? क्या वो स्ट्रेस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है? क्या वो स्ट्रेस जिस चीज़ की वजह से आ रहा है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन यू नीड टू काउंटर दैट, देन यू नीड टू सी द अल्टरनेटिव, देन यू नीड टू सी कि आप उसको किस तरीके से, उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी जो जिस तरीके से होगा, जिस तरीके का प्रॉब्लम होगा, उसको उसी तरीके से डील करना है। फॉर एग्जांपल, आपके सुपरवाइजर से आपको प्रॉब्लम है, तो मे बी देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सुपरवाइजर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। शायद रोल एम्बिग्विटी है, आपका सुपरवाइजर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको लग रहा है कि शायद वो एक सर्टेन लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा है। आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, लेकिन सुपरवाइज़र फिर भी खुश नहीं है। तो उसकी रीज़न को आइडेंटिफाई करें। शायद आप समझे नहीं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इस तरीके से आप इस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से निकल सकते हैं। सिमिलरली, अगर फॉर एग्जांपल आप एक सबऑर्डिनेट है, उससे खुश नहीं है, तो शायद आपने नो रोल क्लैरिटी नहीं दी, आपने उसको एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी नहीं दी। आप उसको ये बताएं कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो क्लैरिटी आ जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो उससे एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा और स्ट्रेस जो है वो खुद ब खुद हैंडल हो जाएगा। सो मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने उसको समझना है। ये तो एक रिएक्टिव कंट्रोल आपको बता रहा हूँ कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो कैसे आपने उसको मैनेज करना है। प्रिवेंटिव कंट्रोल जो है वो वही बात जो मैंने आपको की कि देयर इज़ अ सी बिटवीन द बी एंड डी, चॉइसेस। सी स्टैंड्स फॉर चॉइसेस, जो है वो सी से शुरू होते हैं। तो वो चॉइसेस, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको आपने हमेशा प्राइमरी रखना है, उनको सेकेंडरी नहीं रखना। प्रायोरिटीज़ रह जाती हैं तो जिससे स्ट्रेस बच जाता है। तो प्रिवेंटिवली हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। My name is Wing Commander Nawaz Janjua. Sir, my question is both of the speakers. First of all, thank you very much for enlightening and educating us, interacting, sharing your experience with us on the very much topic which is relevant to all the humans of all the ages. My first question is, do you think, sir, what are the possible cognitive and behavioral symptoms of a person who is stressed?
And the second part of my question would be, is there any human lifestyle induced stress? For example, if few people are working in an organization and they're working in the same situation, same profession, somebody is more stressed, somebody is less stressed. Is it due to the lifestyle or the genetic problem of the individual? And you gave the example of life expectancy in various countries. Like in Pakistan, it is 61 years for the male and 58 or 59 for the female. It varies in various countries. Is it due to the food stuff, or the stress level, or the number of stressors vary from society to society, or there is some body structure which is basically paramount or the major contributing factor towards the life expectancy? For example, in USA it is 83 years of the female and male and 87 years for the female, one of the research. In Pakistan, and what are the common stressors in our society, please? Your comments. See, you have mentioned about this genetical phenomena. Basically, our attitude is a combination of something which we inherit from the genetics and something which we get from the environment. हमारा जो सारा एटीट्यूड जो बनता है वो बनता ही बायोलॉजिकल देन भी है उसमें और एनवायरनमेंट भी है. अक्सर लोग ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट में भी पेरेंट्स मैटर करते हैं. उसकी रीज़न ये कि इन्फेंसी से ही हमें जो एनवायरनमेंट मिलती है वही हमारे बिहेवियर को शेप कर रही होती है, वही हमारे एटीट्यूड को शेप कर रही होती है. तो जेनेटिक डिफरेंस जो है वो है, एक हद तक है, इफ़ नॉट 100%, आई मीन सिग्निफिकेंट नहीं है. सिग्निफिकेंट जो है वो एनवायरमेंटल शेपिंग है. बास रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 20% ऑफ द एटीट्यूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द genetics. That is something which we inherit from our parents. And 80% is something which we get it from the environment. जिसमें हमारी स्कूलिंग आ जाती है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, जो जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं, वो सारी इन्वायरमेंट उसमें आ जाती है. तो लोगों की स्ट्रेंथ टू रिस्पॉन्ड स्ट्रेस डिफरेंट होती है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर ग्रूम्ड, इट डिपेंड्स अपॉन वेयर दे हैव बीन लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सपोजर दे हैव गॉट to the stress and how much they have learned from their parents or their environment. वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है. So people vary, उनका जो रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है वो वेरी करता है. आपने एक और चीज़ जो कही वो ये कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसीज डिफरेंट हैं. इज़ इट बिकॉज ऑफ देयर फूड और इज़ इट बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द कंट्री? ये दोनों चीज़ें ही हैं. ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमिनास. ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी करती है फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, उसमें हाइजीनिक जो इन्वायरमेंट है वो भी मैटर करती है, उनके जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी मैटर करती है, उनके जो बच्चों को डाइट मिलती है, उनके जो उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी अच्छी है कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स में वो लोग रहते हैं. तो वो चीज़ भी मैटर करती है. एट द सेम टाइम वहाँ पर जो सोशल प्रेशर है वो भी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल यूके वेस्ट में जाएं आप तो वहाँ पर यू विल फाइंड आउट कि जब कोई बच्चा यंग हो जाता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स से अलग रहना शुरू कर देते हैं. और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये है कि एवरीबडी हैज़ हिज और हर ओन लाइफ और उनको अपनी लाइफ खुद ही बनानी जीनी है. जब वो हमारे माशरे को देखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि यू गाइज लिव फॉर द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जब हम 30s में होते हैं, 40s में होते हैं, हमारे अक्सर पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ज़िंदा होते हैं. हम उनकी आंखों को देखते हैं, हम उनकी ख्वाहिशात को देखते हैं और उन्हीं ख्वाहिशात के दायरे में रहकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. सो दे सी अस लाइक दिस कि आप लोग दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हो, अपने लिए कम रहते हो, जबकि इंसान की अपनी ज़िंदगी पर अपना हक ज़्यादा है. तो वो इस वजह से 18 ईयर्स के बाद वो चले जाते हैं. लेकिन बिलीव यू मी, जो वो जनरेशन जो अभी आजकल उनकी है, उनको इस अलहदगी की वजह से, इस इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की वजह से, जहाँ पर वो कलेक्टिव फैमिली स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं, इसकी वजह से उनको इतने सोशल इश्यूज़ हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि समटाइम्स दे थिंक दैट जो उनकी फोर फादर्स की जो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम या जो स्ट्रक्चर था उसको वो याद करते हैं. एंड दे इनवी अस कि हम लोग जो है वो अभी तक एक दूसरे के साथ मिलकर
रहते हैं. So these are different, I mean, there are different factors which actually causes the life expectancy of individual living in different countries. But that is correct because if you consider the different nationalities, Shani, American are different. But one fact is common, that in each of the country, the difference between the life expectancy of a male and female is the common factor. Whether it's social pressure in US are different, in Pakistan are different, China is different. My question is it due to stress or it is due to the body structure of a human being which varies between the male and the female? Well, see, I would say कि body structure जो है वो भी naturally because everywhere in all the countries, there's no country where the male has the more life expectancy than the female. It's one of the common factors. Right, it is common. I mean, ये तो खैर anyhow जो हमारे मुल्क है उसकी statistics मैंने आपको बताई है कि the average age of a woman is 61 and the average age of a man is 58. और there are some obvious reasons as well. जहाँ तक इसकी बात की अगर फॉर एग्जांपल एक माशरा है वहाँ पर लोग सेहतमंद हैं, नेचुरली हेल्दी पेरेंट्स विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड हु इज़ आल्सो हेल्दी. अब इसमें उस किस्म की चीज़ें भी आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कि जैसे फैमिली मैरिजेस हैं उससे प्रॉब्लम चाइल्ड जो है वो आ जाते हैं, उसमें इश्यूज आ जाते हैं. तो आई मीन दिस इज़ समथिंग कि आई वुड से कि कॉम्बिनेशन है, वो चीज़ भी मैटर करती है जो फिज़िकल या बायोलॉजिकल है, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं या जो उनकी हाइजीनिक फूड है या जो इन्वायरमेंट है वो भी मैटर करती है. एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि साउथ कोरिया में मैंने नोटिस ये किया, एक दफ़ा जाना हुआ वहाँ पर, तो आपके बेस कमांडर साहब भी वहाँ पर रह चुके हैं, ही नोज़ देम वेल. वहाँ पर अक्सर ये देखा कि जब बारिश होती है तो बारिश के जो जैसे ही बारिश शुरू होती है पीपल जस्ट यू नो दे शाय अवे, वो बिल्कुल वहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और किसी छत के नीचे जो है वो पना लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं. और अक्सर ये होता है कि नहीं जा सकते तो अगर एक कागज़ भी होगा तो वो सर के ऊपर रखेंगे. तो उसी उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखिए, वो ये कहते हैं कि जब बारिश के पहले कतरे आते हैं तो जो यहाँ पर हमने ज़मीन पे जितनी मशीनरी लगाई हुई है, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे जो सल्फ़र है या सल्फ्यूरिक एसिड है वो हवा में है. अब जब वो उधर से बारिश के पानी आते जाते हैं तो इससे एक पॉइजनस एसिड बनता है जो स्किन के लिए ठीक नहीं होता, और वो उससे भागना शुरू कर देते हैं. जबकि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आते हैं. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच प्रिवेल्स इन साउथ कोरिया एंड ऑन द अदर हैंड द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच प्रिवेल्स इन आवर कंट्री. सो that difference is actually which matters into the life expectancy, into the self-care, into different many things. Simultaneously काम नहीं करते. अब हमारे यहाँ ये होता है ऑफिस में जाएं, इधर फ़ोन बज रहा है, इधर मोबाइल बज रहा है, सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसके साथ हम फोकस कर रहे हैं, एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, इधर आपके साथ दो और बंदे बैठे होते हैं, वो इंटायरली डिफरेंट इशू पे है. आप काम कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे हैं, उधर से आपके ऑफिस में कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाएगा या कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो आपके शेड्यूल में नहीं था, स्केड्यूल में नहीं था, एंड यू कैन नॉट से इवन नो टू द पर्सन फॉर द रीज़न कि वो एक सोशल प्रेशर हम पे होता है कि यार खफा हो जाएगा, रिश्तेदार है, किसी ने भेज दिया है, किसी हवाले से आया है. सो ऑल योर फोकस ऑन द ड्राफ्ट इज़ गॉन. और जब आप उसको वो टाइम जो आपने इसके लिए स्पेसिफाई किया था वो आप उस बंदे को दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आपको ये काम रह जाएगा, आपकी प्रायोरिटी रह जाएगी और जिसका स्ट्रेस आप पे होगा. वहाँ ऐसा नहीं होता. वहाँ अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ पर्सन, आई रिमेंबर माई सुपरवाइजर्स कि वो उनकी डायरी जो है वो अगर 2016 अक्टूबर 2016 है एंड यू वांट टू गेट सम ऑफ हिज टाइम, आप उसके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है, किसी लेजिटिमेट या ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क हिम फॉर द टाइम तो वो आपको मार्च 2017 में कोई टाइम देगा. वो सारा बुक्ड है. और वो अगर बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर ना हो तो वो उसी के मुताबिक चलते हैं, वो माइनर चीज़ों को लाने नहीं देते. ये एक लाइफ स्टाइल है जो वो लोग गुजार रहे हैं. दे डू नॉट लिव इन लाइक दिस के जिसमें उनका एक जहन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मुख्तलिफ जगहों पे. हमारा जहन साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा होता है. सो वो फोकस्ड है. ये एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है उनका और हमारा डिफरेंट है. तो जो ये सारे फैक्टर्स जो है ये मैटर करते हैं एक इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन पेशेंट बनाने के लिए. एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, आई डोंट नो वेदर इज़ राइट और रॉन्ग बिकॉज आई स्टडीड इट इन द न्यूज़पेपर, कोई सॉलिड रेफरेंस उसका नहीं था. उसके मुताबिक 78% ऑफ पाकिस्तानीज आर हाइपरटेंशन पेशेंट्स.
78% एक बहुत बड़ा फिगर है। हाइपरटेंशन है क्या? जब हम बहुत एंग्जाइटी के स्टेटस है, हमें पता नहीं है, बट वी आर लाइक एंग्जाइटी पेशेंट्स, परेशान हो जाते हैं, फियर है, एक अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। फॉर एग्जांपल ये एक इंडेक्स है, किसी के कल्चर के मुहज़िब और ना मुहज़िब होने के लिए इसको इस पैमाने को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि हम अनसर्टेनिटी कितना अवॉइड करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जो है वो डेनमार्क में है, जिसकी मैंने स्टेटिस्टिक्स आपको बताई, हैप्पीनेस कंट्री, जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मीन्स कि वो तमाम चीज़ें प्लान करते हैं, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं। बट लुक एट अस, अगर आप पाकिस्तान को देख लें या फॉर एग्जांपल फॉर दैट सेक आप किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देख लें, तो यू विल फाइंड आउट कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी है। अगले मिनट का पता नहीं लगता। इफ़ यू स्टार्ट वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन अ टेलीविजन, यू आर नॉट श्योर कि आप दूसरा ओवर देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। उसकी रीज़न ये, मे बी लाइट चली गई, आपने लाइट का बैकअप अरेंज किया, मे बी केबल नेटवर्क चला गया, केबल नेटवर्क को आपने फॉर एग्जांपल अपने साथ लगाया, यू नेवर नो, समथिंग कैन हैपन। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। उनकी बड़ी पैटर्नाइज, दे डोंट अटेंड द गेस्ट्स unless and until they come to them with the appointments। तो इस वजह से उन्होंने अवॉइड किया हुआ है, इन चीज़ों को रखा हुआ है। हमारे यहाँ प्लेजर क्या है? वी गो टू द डिनर्स। फूड इज समथिंग विच वी सेलिब्रेट इन पाकिस्तान। वेस्ट में फूड को एंजॉय किया जाता है, बट आई हैव सीन पीपल गोइंग टू द वॉक, गोइंग फॉर साइकिलिंग ऑन देयर हॉलीडेज। और उसकी रीज़न ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो ये लाइफ स्टाइल है जो डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ का, और वही डिटरमिन करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। थैंक यू। Toward the base commander to kindly present souvenirs to the guest speakers. Assalamu alaikum. I am happy today that you have gotten out of the stressful environment and enjoyed the nice and pleasant evening of Kohat. But truly I am stressed today because lecture इतना लंबा था माशाल्लाह कि मुझे भूख लग गई है। I am sure आप लोगों को